हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 1 के पार्ट 2 में आए हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। नॉट सेल, इट्स सेल ऑर्गेनल्स। कल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनल्स और विच वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल. We can divide the constituents of cell in two parts: functional regions and cell organelles. Here functional regions means plasma membrane, nucleus and cytoplasm, and these cell organelles are of two types: membranous or non-membranous. Membranous means the organelles which have a outer plasma membrane, and the organelles which do not have the membrane, these are called non-membranous. And so here we will only talk about only few important organelles. There are many organelles, but we will discuss about these some important which are useful for us. Okay. मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ सेल के बारे में पढ़ लिया था। तो आपको पहले सेल के बारे में जानना होगा, तभी आप ये आगे की चीज़ें समझ पाएंगे. So if anyone who doesn't watch the part 1 of this video, so I uploaded the link on this in description box. Go there and watch this part 2. So let's start. Here it is a structure of a cell. Take a look at all the organelles, at all these constituents of cell. Like where is our um, cell membrane or plasma membrane? This is okay. And next, lysosome, important for us. Mitochondria, this is cytoplasm, this whole fluid. Cytoplasm, nuclear membrane, nucleolus, smooth, endoplasmic reticulum. There are two types: smooth and rough. Golgi apparatus, macrovilli, cilia flagella. So some are important, not all these carry on, not important for us, these type of organelles. So let's first of all, plasma membrane. Plasma membrane you can call is as cell membrane also. Plasma membrane को आप cell membrane भी बोल सकते हैं. It is the outermost layer of cell, outer covering of cell, which separates it from the outer environment, and the inner medium. It separates the inner medium फ्रॉम आउटर सराउंडिंग और आउटर एनवायरनमेंट. मतलब जो सेल के अंदर है उस मटेरियल को जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करने वाली लेयर को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट इज़ कंपोज ऑफ लिपिड देखो, लिपिड फैट भी है, ग्लिसरॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन. ओके. This is so we can call it as phospholipid. It is made up of phospholipid, and it is very thin, elastic. This is elastic. The structure of plasma membrane is around 7.5 to 10 nanometer. Very small, very thin. It is selectively permeable in nature. Selectively permeable means it allows entering or exit of only few selected materials. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि यह कुछ ही ऑब्जेक्ट्स का अंदर आने देती है, कुछ ही ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को बाहर जाने देती है. ऑब्जेक्ट और सेलेक्टेड मटेरियल
उन्हीं को अंदर आने की परमिशन है, उन्हीं को बाहर जाने की परमिशन है थ्रू दिस cell membrane. Functions of cell membrane are it regulates the movement of the molecules or these ions and organic molecules. Okay, it regulates the movement of ions and organic molecules inside or outside of the cell. It provides a definite shape of cell. It will be circular or elongated. It depends on this plasma membrane. And membrane catalyzes cell chemical reactions. It means it boost or it can slow down. Catalyze का मतलब है to change in speed of chemical reactions. Catalyze catalyze करती है ये chemical reactions को, क्या तो ये fast करेगी या फिर उनको slow करेगी. It means plasma membrane controls the reactions of inside cell. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस देखो, इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल एंड वी कैन से सेंटर कंट्रोल. द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर है ये पूरी सेल का. that directs the activities of the cell. It is spherical in shape, prominent oval structure. It controls all the activities that takes place in a cell. We can say it as head of cell. It is covered by a double layered membrane called nuclear membrane. जैसे सेल मेम्ब्रेन थी वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है बात करेंगे अगले पॉइंट में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन कंटेनिंग न्यूक्लियर पोर्ट्स थ्रू विच ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस एंड फ्लूइड ऑफ सेल टेक प्लेस. देखो एक सेल है, हमने देखा था सेल के चारों मतलब सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और वैसे ही सेल के फ्लूइड के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर फ्लूइड है, राइट. तो न्यूक्लियर फ्लूइड से सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर्स. ओके, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उनके थ्रू दोज न्यूक्लियर पोर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्लूइड टू सेलुलर फ्लूइड टेक प्लेस. एंड दिस न्यूक्लियस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्लूइड है, जो न्यूक्लियर फ्लूइड द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म. इट इज कलरलेस डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉरी, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर दो चीज़ें हम बोल सकते हैं, दो चीज़ें हैं. न्यूक्लियस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड न्यूक्लियस इन टू पार्ट. वन is chromatin material which is consist of chromatin material and another is nucleolus. तो देखो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और ये अपना न्यूक्लियोलस राइट. तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक और न्यूक्लियोलस है. तो न्यूक्लियोलस और ये क्रोमाटिन मटेरियल क्या है एक्चुअली, इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स यू कैन से it is a thread like structure and thin, it is very thin thread like long structure which containing DNA मतलब deoxyribonucleic acid. देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो पार्ट बोल सकते हैं हम. पहला क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा. डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स विच हेल्ड द जेनेटिक मटेरियल. जीन्स के अंदर क्या होता है, विच जीन्स स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड दैम. अब जेनेटिक मटेरियल काम आता है हेरिडिटी के अंदर.
राइट। तो chromatin material is consist of chromosomes, and chromosomes have DNA, and DNA have genes. DNA have genes, and further genes stores genetic material, genetic information, which passes to the next generation through heredity, right? And the other part of nucleus is nucleolus. Nucleolus is made up of two things: RNA, DNA, and RNA. These are two different things. RNA means ribonucleic acid, DNA means deoxyribonucleic acid. हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखना है, वी हैव टू लुक एट बेसिक्स। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन और आरएनए होता है। आरएनए इज, देखो, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये एक प्रोसेस होती है बायोलॉजी के अंदर। ओके, देन वी लुक एट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है मैनी फंक्शंस। इट इज़ द कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल of cell. It directs all the growth and development, cell growth, cell development, right? It stores the genetic information, genetic information store करता है। it also controls cell division. cell division is also responsible नहीं, जो कमांड आएगी सेल डिवीजन की वो न्यूक्लियस से ही आएगी। अगला है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मैंने पहले बता दिया, इट इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, राइट। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस बट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो रहते हैं। ऑल नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। उन ऑर्गेनल्स को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म के फंक्शंस हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मॉलिक्यूल्स सच एज एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट का। इट हेल्प्स टू फिल आउट द सेल्स एंड कीप्स द ऑर्गेनल्स एट देयर प्लेस। जितने भी, हाँ, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो मूव करेंगे अलग अलग जगह, एक अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे। सो उनको एक जगह पे फिक्स रखने के लिए, और मतलब उनको to regulate all these organelles, cytoplasm is necessary. इट हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स के कारण जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये उनमें हेल्प करता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक अलग टर्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, एक बेसिक टर्म है। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। देखो, साइटोप्लाज्म तो हमने बात की, ये फ्लूइड है किसके बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में पूरा मतलब जित सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और हमने बात की थी न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इन तीनों चीज़ों से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब पूरी सेल के जितने फ्लूइड हैं उनका एक मिक्सचर है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ द कंटेंट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, तीनों चीज़ों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है 75 से 85%, ये देख लो, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पहले ही देख लिया था, ये मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन चार के बारे में हम बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दिस 4 membranous organelles and these 3 non membranous organelles. Okay, so let's go. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum इज ए नेटवर्क, और एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क है रनिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये एक न्यूक्लियस के पास, नियर टू द न्यूक्लियस, इट फॉर्म्स द वॉल्स ऑफ नेटवर्क. ये एक नेटवर्क की वॉल्स बनाता है. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ मेम्ब्रेन रनिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. Right, it forms the walls which are constructed of lipid bilayer membrane that contain a large amount of protein. ये एक मतलब न्यूक्लियस के पास छोटी छोटी दीवारें बनाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स दीवारें. तो वो किसकी, जो उनकी मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की कंसिस्ट होती हैं. It serves as a channel for the transport of material from one part of the cell to another. देखो इसका काम क्या है, ये एक चैनल का काम करता है ना. एक चैनल का मतलब जिसके थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो पास होते हैं, मतलब एक पार्ट सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसके थ्रू. ये क्योंकि ये देखो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, आपको पता है. इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू न्यूक्लियस. देखो ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है. दैट्स वाई दिस substances कैन मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू दिस नेटवर्क थ्रू साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के थ्रू इस नेटवर्क से होते हुए न्यूक्लियस के सब्सटेंस है वो पास कर सकता है ये. राइट, it can pass the substances or it can transport the materials from the nucleus because it serves as a channel, right? That's why it can transport those materials from nucleus to other part of cell because it is nearer to the nucleus, because it has a अब देखो इसकी ज़्यादा बात न करें तो टाइप्स इसकी, दिस टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है. पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ का मतलब है कि इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, और रफ का मतलब है इट कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉल्स पे अगर राइबोसोम होगा तो वो स्मूथ, तो वो रफ होगा. अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो इनके अलग अलग फंक्शंस है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, ये लिपिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी स्ट्रक्चर देख लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहाँ. देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के पास. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. यह सबसे इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल. यू आई थिंक यू all know mitochondria is the powerhouse of cell. Mitochondria are the small microscopic sacs which contain enzymes for cellular respiration in which energy is released. देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. उन एंजाइम वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो रेस्पिरेशन जब भी होगा तो एटीपी एनर्जी बनेगी. ठीक है, और इसकी शेप होती है रोड शेप्ड ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर होती हैं. स्ट्रक्चर में बात करें तो इट हैज़ मेड ऑफ टू मेम्ब्रेन, outer membrane which is smooth and inner membrane which is folded inside or which have finger like projection which are called cristae. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर which contains enzyme.
उसके अंदर क्रिस्टे के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि फूड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी एनर्जी में, रेस्पिरेशन के थ्रू। जो हमारी फूड एनर्जी है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए यह पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। Here we can see it provides energy in form of adenosine triphosphate. ATP means adenosine triphosphate, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं यहाँ पर, which is vital for the activities of living cells. Hence it is called powerhouse or power plant of a cell. जो हमारे रेस्पिरेशन होती है वो रेस्पिरेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहीं पे एटीपी एनर्जी का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडी, यू कैन से बोथ। गोल्जी अपरेटस ये एक स्मूथ, इट इज़ स्मूथ फ्लैटेंड इन शेप, इट इज़ ए सेक लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन ओवर अदर इन पैरेलल रोज। देखो ये एक के पास एक रखे हुए होते हैं और पैरेलली होते हैं। इनकी मैंने इमेज नहीं दिखाई आपको, सॉरी। तो देखो गोल्जी अपरेटस आप यह ध्यान में रखो, सिंपल बातें हैं कि ये फ्लैट शेप में होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और एक के पास एक रखे हुए होते हैं। तो इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। देखो जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनका पैकेज होता है इसके अंदर, और उनको डिस्पैच करती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनको सेल के अदर पार्ट्स में डिस्पैच करने का काम है गोल्जी अपरेटस का। और गोल्जी अपरेटस के अंदर लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन भी, ये इनके इनके इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम जो हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व रहता है। और तीसरा, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का काम ये नहीं करता लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म विच आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम are small membrane enclosed sacs that contain enzymes capable of breaking down protein and lipids. इसके अंदर देखो, अब लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन का काम होता है। हियर डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये एक स्मॉल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एनक्लोज होता है, मतलब एक छोटी सी बहुत छोटा होता है लाइसोसोम्स। और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं इनका प्रोटीन और लिपिड का ब्रेक डाउन करने में। These enzymes are called hydrolytic enzymes. It contains hydrolytic enzymes which degrades lipids and proteins. जो वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल के, यूजलेस, उनको डिग्रेड करता है। कई बार देखो दोस्तों, इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, सुसाइड बैग, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये अपनी ही सेल को डैमेज कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग। तो लोगों को पावर हाउस ऑफ सेल तो पता है, लेकिन सुसाइड बैग के बारे में बहुत कम पता है। सुसाइड बैग का मतलब है लाइसोसोम। बिकॉज होता क्या है कि मैनी टाइम्स इट डैमेज और डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल, दैट्स वाई इट्स नोन एज सुसाइड बैग। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स आर स्मॉल बीड लाइक बॉडीज। देखो राइबोसोम पूरे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग जगह छोटे छोटे होते हैं बहुत। दीज आर वेरी स्मॉल एंड स्मॉल, वेरी स्मॉल सेक्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म। और अटैच्ड, हमने बात की थी, अटैच्ड तो रहते ही हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पे अटैच रहते हैं राइबोसोम, और कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, अलग अलग जगह। These are attached. The site of ribosome is on rough endoplasmic reticulum and in free state in cytoplasm. It can be found at two places, scattered throughout the cytoplasm. पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग जगह रहते हैं, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर। एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, उसकी साइट है राइबोसोम, राइबोसोम, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो राइबोसोम है। यह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। The ribosome does not synthesize protein, but it is the site of protein synthesis. Next is cilia and flagella. Cilia and flagella. तो ये these are small steps. Cilia are the tiny brush-like hairs. These are small hairs, and flagella are slender whip-like appendages. Both the cilia and flagella are used to move or push or pull the cell. जो फ्लूइड एनवायरनमेंट है उसके अंदर सेल को मूव कराने में सीलिया और फ्लैजेला हेल्प करते हैं। सीलिया है ये बहुत शॉर्ट एंड न्यूमरस, बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटी हाइट की होती हैं। फ्लैजेला दिस इज इन लॉन्ग एंड सिंगुलर। फंक्शंस ऑफ सीलिया आर स्वीप सब्सटेंसेस ओवर सेल सरफेस। जैसे सेल पे कोई भी चीज़ अगर आके चिपक जाती है तो उसको हटाना सीलिया का काम है, और सेल को मूव कराना एनवायरनमेंट के अंदर वो फ्लैजेला का काम है। सीलिया हेल्प्स इन स्वीपिंग द सब्सटेंसेज ओवर सेल सरफेस एंड फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल थ्रू एनवायरनमेंट। Next, last is centriosome. Centriosome is a spherical body near center of the cell. It is spherical in shape and near to the nucleus. Center of cell means near to the nucleus. Centrioles are located in centriosomes. In centriosome there are centrioles which are tiny cylinders. सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम देखो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। तो उसके अंदर हेल्प करता है सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल्स। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, कीप इन माइंड ओनली सिंपल थिंग्स। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही देखेंगे क्योंकि अभी लास्ट टॉपिक टिश्यू बाकी है। ये टिश्यू मैं बना तो लिया था लेकिन इसमें बहुत लंबा हो गया था। टिश्यू को अगर ऐड करके रखते तो इसलिए मैंने टिश्यू को हटा दिया। उसकी वीडियो कल डालेंगे। कल 4 बजे टिश्यू हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिट 1। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सजेस्ट मी any kind of development you want in me। मैं आपके लिए क्या और कुछ कर सकता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ईमेल पे मैसेज करें। किसी को भी पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और प्यार बनाए रखो ऐसे ही। थैंक यू।